Hello everyone, so welcome to Vet It's You YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine. So in this video, we will discuss about the glanders, that is also known as Farsi and Malleus, an important topic from the veterinary pathology portion. So simply the glanders is also known as Farsi and Malleus. It is a contagious and highly fatal disease of horse, mules and donkeys, occurs in the either acute or the chronic form, and it is characterized by the formation of nodules and ulcers on the respiratory tract and the skin. It is a zoonotic disease. It means it can be transmitted from animals to the humans. Coming to the etiology, it is caused by Pseudomonas malai. It is primarily known as Actinobacillus malai, which is a short, rod-shaped organism with the round-ended and gram-negative aerobic and the obligate parasite. Coming to the incidence, in the horses it occurs in the chronic form, and in the mules and donkeys it occurs in the acute form. Highly susceptible and man is moderately susceptible. Dogs and cats are also susceptible. The transmission is the route through the ingestion, inhalation, which is a rare route of transmission, and through the skin invasion. Dogs and cats acquire the infection from the ingestion of the contaminated horse meat. अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द ग्लैंडर्स, जिसको हम फारसी एंड मैलियस के नाम से भी जानते हैं. इट इज ए कॉन्टेजियस एंड हाईली फैटल डिजीज ऑफ हॉर्स, म्यूल्स एंड donkeys, occurs in the acute and chronic form and characterized by the formation of nodules and ulcer in the respiratory tract and the skin. ठीक है, देखो ये जो ग्लैंडर्स है इसको हम दो नामों से और जानते हैं, एक है फारसी एंड एक है मेलियस. ठीक है, अब ये जो ग्लैंडर डिजीज है ना, ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज है एंड विच इज हाईली फेटल इन द केस ऑफ द हॉर्सेस, म्यूल्स एंड donkeys. अब हॉर्सेस, म्यूल्स एंड donkeys में ये जो ग्लैंडर डिजीज होती है, इसके दो फॉर्म हो सकते हैं, एक एक्यूट फॉर्म और एक क्रोनिक फॉर्म. ठीक है, अगर कोई हॉर्स और कोई म्यूल या कोई डंकी ग्लैंडर से सफर करता है तो वहां पे एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स एंड अल्सर in the respiratory tract of that particular infected animal and the skin. ठीक है, this glandar is a zoonotic disease. इसका मतलब क्या हुआ, जो glandar disease है वो एनिमल से ह्यूमंस में भी ट्रांसमिट हो सकती है. ठीक है, coming to the etiology, the causative agent for the glandars is the Pseudomonas malai, जिसको हम पहले Actinobacillus malai के नाम से भी जानते थे. This bacteria is short rod-shaped organism with the round and gram-negative and aerobic obligate parasite. देखो, अब ये जो ग्लैंडर डिजीज है, इट विल अफेक्ट द हॉर्सेस, म्यूल्स एंड donkeys, एंड इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, Pseudomonas malai, जिसको हम पहले Actinobacillus malai के नाम से भी जानते थे. अब ये जो बैक्टीरिया होता है ये बहुत छोटा होता है, रॉड शेप्ड होता है, इसके राउंड एंड होते हैं. इट इज ग्राम नेगेटिव इन नेचर, एरोबिक बैक्टीरिया होता है एंड इट इज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट. ठीक है, अब बात करते हैं इंसिडेंस की. तो हॉर्सेस के केस में इट विल अकर इन द क्रॉनिक फॉर्म, एंड इन द केस ऑफ द म्यूल्स एंड डंकी इट विल अकर इन द एक्यूट फॉर्म. इट इज हाईली सस्पेक्टेबल एंड इन द केस ऑफ द ह्यूमंस इट इज मॉडरेटली सस्पेक्टेबल. डॉग्स एंड कैट्स आर आल्सो सस्पेक्टेड. देखो, अब ये जो ग्लैंडर्स है इसकी दो फॉर्म होती है, एक होती है एक्यूट फॉर्म, एक होती है क्रोनिक फॉर्म. तो हॉर्सेस के केस में तो ये क्रोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, म्यूल्स और डंकी के केस में एक्यूट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. म्यूल्स एंड डंकीज और हॉर्सेस आर हाईली सस्पेक्टेबल टू दिस पर्टिकुलर इन्फेक्शन. ह्यूमन बीइंग्स के केस में इट इज मॉडरेटली सस्पेक्टेबल एंड इट कैन आल्सो अफेक्ट द डॉग्स एंड कैट्स. ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की. सो द इनहेलेशन, इंजेक्शन एंड थ्रू द स्किन इन्वेशन, these are the main routes of the transmission, and in the case of the dogs and the cats they acquire the infection from the ingestion of the contaminated horse meat. देखो, अब बात करते हैं हम ट्रांसमिशन की कि ये एक एनिमल से दूसरे एनिमल में किस तरीके से ट्रांसफर होता है. सो द रूट ऑफ द ट्रांसफर कैन बी द इंजेक्शन, इनहेलेशन एंड थ्रू द स्किन इन्वेशन. डॉग्स और कैट के केस में रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंजेक्शन ऑफ द कंटामिनेटेड हॉर्स मीट. अगर कोई हॉर्स था
इसकी ग्लैंडर्स की वजह से डेथ हो गई और इसका मीट हमने डॉग और कैट को फीड करा दिया, तो दीज हेल्दी डॉग एंड कैट विल आल्सो गेट द इन्फेक्शन। ठीक है, moving to the pathogenesis of the glanders, the invasion occurs mostly through the intestinal wall and septicemia, which is an acute form, and a bacteremia, that is a chronic forms, will develop. The respiratory mucosa and the lungs are commonly affected. Localization always occur in the lungs, but skin and nasal mucosa are also the common site. Other viscera are also developed, typically nodules. Death due to the bronchopneumonia caused the anoxic anoxia. अब हम लोग बात करेंगे about the pathogenesis of the glanders disease. So simply the invasion of the bacteria occurs through the intestinal wall and develop a septicemia condition in the acute form and the bacteremia condition in the chronic form. देखो, अगर कोई हॉर्स, कोई म्यूल या कोई डंकी ग्लैंडर से अफेक्ट करता है, तो जो ग्लैंडर का बैक्टीरिया है ना, सबसे पहले ये इंटेस्टाइनल वॉल को इन्वेड करेगा और एक डेवलप करेगा सेप्टिसेमिक कंडीशंस को, किस फॉर्म में? एक्यूट फॉर्म में, एंड इट विल डेवलप अ बैक्टीरियमिया कंडीशन इन द इन्फेक्टेड एनिमल इन द केस ऑफ अ क्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, द रेस्पिरेटरी म्यूकोसा एंड द लंग्स आर मोस्ट कॉमन अफेक्टेड। अब ये जो ग्लैंडर्स है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है ना, ये सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी म्यूकोसा और लंग्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, द लोकलाइजेशन ऑलवेज अकर इन द लंग्स एंड बट द स्किन एंड द नेसल म्यूकोसा आर द कॉमन साइट्स। अब ये जो ग्लैंडर्स है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, इसका जो बैक्टीरिया है, ये अपने आप को लंग्स में जाके लोकलाइज करता है, बट इट कैन ऑल्सो लोकलाइज इटसेल्फ इन द स्किन एंड द नेसल म्यूकोसा। अदर विसरा ऑल्सो डेवलप द टिपिकल नोड्यूल्स। जो हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं ना इन्फेक्टेड एनिमल्स में, वहां पे नोड्यूल फॉर्मेशन भी हो जाता है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर इन्फेक्शन। डेथ इज ड्यू टू द ब्रोंकोन्यूमोनिया दैट कॉज द एनॉक्सिक एनॉक्सिया। अब जो भी एनिमल्स ग्लैंडर से अफेक्ट होते हैं ना, उनमें ब्रोंकोन्यूमोनिया की वजह से डेथ हो जाती है, विच विल डेवलप अ कंडीशन ऑफ एनॉक्सिक एनॉक्सिया। इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है, दैट विल अल्टीमेटली प्रूव्स टू बी द फेटल। ठीक है, so moving on, we will discuss about the clinical signs. So as you already know that the infection of glanders in an animal will produce two conditions. One is a acute form condition and another one is the chronic form condition. So talking about the acute form condition, it will cause a high fever, cough and nasal discharge with the ulcers on the nasal mucosa and nodules on the skin of the lower limb or the abdomen. It will cause the death from the development of the septicemia condition. In the chronic form, it already have the two forms. One is the pulmonary form. So under the pulmonary form, the chronic cough and the frequent epistaxis and the labored respiration, nasal lesions lower part of the turbinates and the cartilaginous nasal septum, nodules of 1 centimeter, ulcerate and become confluent, and on healing ulcer it is replaced by the characteristic star-shaped scar. In the early stage, the serous nasal discharge is unilateral and later become purulent and the blood tinged. The enlargement of the submaxillary and the parotid lymph nodes may be observed. So अब हम लोग बात करेंगे about the clinical signs that you may observe in the animal suffering from the ग्लैंडर्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी एनिमल्स ग्लैंडर से सफर करते हैं, वहां पे दो कंडीशंस और दो फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं ग्लैंडर्स की, एक है एक्यूट फॉर्म और एक है क्रोनिक फॉर्म। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक्यूट के केस में। तो सिंपली इन दैट पर्टिकुलर एनिमल यू विल ऑब्जर्व द हाई फीवर, कफ, नेशल डिस्चार्ज विद द अल्सर्स ऑन द नेसल म्यूकोसा एंड नोड्यूल्स ऑन द स्किन ऑफ द लोअर एब्डोमेन एंड द लोअर लिम्स एंड द डेथ फ्रॉम द सेप्टिसीमिया। देखो, जो भी एनिमल्स एक्यूट फॉर्म ऑफ ग्लैंडर से सफर करेंगे, वहां पे आपको हाई फीवर देखने के लिए मिलेगा, नेशल डिस्चार्ज देखने के लिए मिलेगा, कफ देखने के लिए मिलेगा और अल्सर्स का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा नेसल म्यूकोसा में। अलोंग विद दिस यू विल आल्सो ऑब्जर्व द नोड्यूल फॉर्मेशन इन द पार्ट्स ऑफ द लोअर लिम्ब एंड द एब्डोमेन, एंड देन फाइनली द एनिमल विल डाई ड्यू टू द कंडीशन ऑफ द सेप्टिसीमिया। ठीक है, अब बात करते हैं क्रोनिक फॉर्म की। तो जो क्रोनिक फॉर्म होता है, इसकी भी दो सब फॉर्म होती हैं। फर्स्ट वन इज द पल्मोनरी फॉर्म।
So if a animal is suffering from the chronic glanders or the specifically pulmonary form of the chronic glandar, तो वहां पे आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, क्रोनिक कफ, फ्रीक्वेंट एपिस्टेसिस एंड लेबर्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, वहां पे वो भी उस एनिमल में आपको कफ देखने के लिए मिलेगा, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज एंड लेबर्ड रेस्पिरेशन, उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, next one is the nasal lesions in the lower parts of the turbinates and the cartilaginous nasal septum and the nodule formation of around 1 centimeter. It will ulcerate and become confluent, and on healing of the ulcer it is replaced by the characteristic star shaped scar. देखो अब क्या होगा उन एनिमल्स में जो भी पल्मोनरी फॉर्म ऑफ द क्रोनिक गैलेंडर से सफर कर रहे हैं, वहां पे नेशल लीशंस दिखेंगे इन द लोअर पार्ट ऑफ द टर्बिनेट बोन। ठीक है, वहां पे कार्टिलेजिनस नेशल सेप्टम दिखने के लिए मिलेगा, नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होगा जिनका साइज अराउंड 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अल्सरेशन होगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये अल्सर जो है ना हील करेंगे एंड विल प्रोवाइड अ कैरेक्टरिस्टिक स्कार शेप्ड स्कार in that particular infected animal. ठीक है, in the early stages the serous nasal discharge unilateral and later become the purulent and the blood tinged. ठीक है, अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन में जो भी एनिमल होंगे वहां पे नेसल डिस्चार्ज होगा, वो पहले सीरस होगा एंड इट विल बी यूनिलेटरल। ठीक है, एंड लेटर ऑन इट विल बिकम पुरुलेंट एंड द ब्लड टिंज। पहले तो सीरस था, फिर धीरे धीरे पस फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ पे ब्लड भी आने लगेगा। ठीक है, मूविंग ऑन, द एनलार्जमेंट ऑफ द सबमैक्सिलरी एंड द पैरोटिड लिम्फ ग्लैंड्स में बी ऑब्जर्व। अब जो भी एनिमल्स पल्मोनरी फॉर्म से सफर कर रहे होंगे तो वहां पे सब मैक्सिलरी और पैरोटिड लिम्फ नोड्स जो है ना वो भी एनलार्ज कर जाएंगी। ठीक है, so the another form of the chronic glandar is the cutaneous form. If an animal is suffering from the cutaneous form of the chronic glandar, you may observe the appearance of the subcutaneous nodules of size 1 to 2 centimeters, which will later ulcerate and discharge the pus. The thickened fistulous lymphatics, the lymph nodes draining the area are involved, and abscess formation and discharge to the exterior. The lesions are the most common in the medial aspect of the hock region. So that's all for this video. I hope you like it. So please like, share, comment and subscribe to my channel Vet It's You. Thanks for the watching, an initiative by Ankit Kaushik.